Good morning, students. Now, in this lecture, we'll discuss trigonometric equations. Our topic is trigonometric equations. Trigonometric equations. So, up to now, you have already studied equations. Equations सबको पता है. But here we have to discuss trigonometric equations. So, what is trigonometric equations? Trigonometric equations are nothing but the equations which contains trigonometric functions of variable in equation. Equation के अंदर एक trigonometric function किसी भी variable का आ जाए तो उसको हम बोलेंगे trigonometric equations. And here we will discuss solution, how to solve these trigonometric equations. Done. So basically there are two types of solutions of trigonometric equations are there, है ना. किसी भी trigonometric equation का solution find करेंगे that will be of two type: principal solution, principal solution, principal solution, and it can be general solution. Two types of solutions are there: principal solution and general solution. So what is principal solution? Principal solution is nothing but the value of solution which lies between 0 to 2 pi. That means the solution which lies in first quadrant, first cycle from 0 to 2 pi. So that values of variable are known as principal solution, while in case of general solution, it contains in terms of variable n. So general solution is the solution that contains all possible solution of our trigonometric equation, in terms of n, where n is nothing but one integer. Done. तो ये जो solution होगा वो हमारा होगा general solution. So two types of solutions are there: principal solution and general solution. Done. So let's try to solve one question: how to find principal solution, and then we'll discuss how to find this general solution. तो principal solution के लिए एक दो सम करते हैं. So first question. Question number 1. Find the principal solution of equation. Given trigonometric equation is sin x equal to root 3 by 2. This is one equation, है ना. इक्वालिटी की साइन आ गई तो एक इक्वेशन हुआ, है ना. ये इक्वेशन के अंदर एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है साइन, एक वेरिएबल का है sin x. x is one variable. Done. So this is one trigonometric equation. Now we'll try to solve this trigonometric equation, and here we have to find principal solution. Principal solution निकालेंगे. Done. Principal solution मतलब we will try to find the value of this x which satisfy this equation. तो कैसे solve करेंगे देखो. So this one is sin x. Now root 3 by 2. So which value of sin is root 3 by 2? So we know that sin, है ना, root 3 by 2. So sin pi by 6, pi by 2, pi by 3, है ना. sin pi by 3 is root 3 by 2. sin pi by 6 is 1 by 2. Yes, pi by 3. So sin pi by 3 is root 3 by 2. So here we can say our x can be pi by 3, है ना. कोई और उठेगा और बोलेगा सर ये क्या बात की आपने. आप ऐसे भी लिख सकते हो sin x इक्वल टू sin. नाउ पाई बाई 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ पाई माइनस पाई बाई 3. पाई माइनस पाई बाई 3 हमारा सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, है ना. देखो पाई माइनस पाई बाई 3 हमारा सेकंड क्वाड्रेंट आएगा. ये 0, ये पाई बाई 2, ये पाई और ये 3 पाई बाई 2. पाई माइनस सब्ट्रैक्ट करो तो सेकंड क्वाड्रेंट आएगा. और सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो ऑल एस टी सी. तो ये साइन, साइन पॉजिटिव होता है तो साइन पाई माइनस पाई बाई 3 भी साइन होता है. और ये हो गया हमारा साइन 2 पाई बाई 3. So here value of x is also 2 pi by 3. Done. तो देखो दोनों पाई बाई 3 एंड 2 पाई बाई 3 दोनों ये जो रेंज है हमारी, है ना, उसके अंदर लाइज करते हैं. सो हियर x इक्वल टू पाई बाई 3 एंड 2 पाई बाई 3 आर principal solution. They are the principal solution of our given trigonometric equation. Clear students? तो ऐसे आप principal solution find कर सकते हो. So here second question in which we have to find principal solution. So here find the principal solution of equation. Question is find the principal solution. Find the principal solution of equation
Here equation is 10x equal to -1/√3। देखो एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है और हम सबको पता है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा हमारे 0 और 2 पाई के बीच में, है ना। एक रिवोल्यूशन जो होता है यूनिट सर्कल का उसके बीच में होगा। सर्कल तो हम बहुत सारे घुमा सकते हैं, है ना, लेकिन वो सारे मिलेंगे हमें जनरल सॉल्यूशन। अभी हमें फाइंड करना है सिर्फ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो देखते हैं इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, है ना। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के लिए आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑलवेज आपको मिलेंगे 2। कितने मिलेंगे? 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशंस विल बी देयर। तो कभी भी आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में आ जाए तो आप फाइंड करेंगे, तब आपको देखना है कि आपको 2 आंसर मिलेंगे। सो 10x, 2 आंसर क्यों मिलेंगे उसके लिए आपने पहले वीडियो देखा हुआ है। सो 10x इक्वल टू माइनस विच वैल्यू ऑफ 10 इज पाई बाई 3, इट्स 10 पाई बाई 6। डन। 1 by root, we know that 10 pi by 6 is 1/√3। तो 1/√3 को रिप्लेस कर दिया 10 pi by 6 से। अभी 10 नेगेटिव आया, तो 10 नेगेटिव किधर आता है? कौन से क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव आता है? देखो, ऑल एस टी सी। तो 10 नेगेटिव, 10 पॉजिटिव कहाँ है? यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो 10 नेगेटिव यहाँ पर होगा, है ना। तो 10 नेगेटिव करने के लिए पाई में से सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर 2 पाई में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 10 नेगेटिव होगा। पाई में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, 2 पाई में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा। डन। तो 10 नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो दोनों क्वाड्रेंट में एक एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमें मिलेगा। मैंने आपको पहले से बोला है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमें 2 मिलेंगे। सो हियर 10x इक्वल टू 10 नेगेटिव है, तो 10 नेगेटिव को सेकंड क्वाड्रेंट में मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 पाई माइनस पाई बाई 6। 10 पाई माइनस पाई बाई 6, तो पाई में से सब्ट्रैक्ट किया, सेकंड क्वाड्रेंट आ गया और 10 नेगेटिव हो गया। डन। देयरफॉर 10x इक्वल टू 10 पाई माइनस पाई बाई 6 इज नथिंग बट दी 10 6 पाई माइनस पाई, तो 5 पाई बाई 6। So here we are getting the value of x which is 5 पाई बाई 6। डन। ये फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिला हमें सेकंड क्वाड्रेंट में। कहाँ मिला? सेकंड क्वाड्रेंट में। डन। अभी 10 नेगेटिव कहाँ पर होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। 10 नेगेटिव क्यों देख रहे हैं? क्योंकि 10 नेगेटिव हमें यहाँ पर दिया हुआ है, तो 10 नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 को कैसे लिखेंगे, है ना। तो यहीं से लिखते हैं 10x, वी आर गिवन दैट 10x इक्वल टू माइनस 10 पाई बाई 6। तो अभी हमें सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 को लिखना है, तो 2 पाई में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो दिस वन इज 10x इक्वल टू 10 2 पाई माइनस पाई बाई 6। देखो 2 पाई माइनस पाई बाई 6 करो तो फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव हो जाएगा। सो हियर 10x, वी आर गेटिंग 10x इक्वल टू 10 6 2 12 माइनस 1 11 pi by 6. So 10x equal to 10 11 pi by 6. Hence we are getting x equal to 11 pi by 6. So x equal to 11 pi by 6 is the another principal solution. है ना? We are having total 2 principal solutions. So x will be solution is x equal to 5 pi by 6 and 11 pi by 6. Then these are the principal solution of this given trigonometric equation. Clear, friends? Now students, we have to discuss general solution, and for that we are having three theorems. So theorem number 1. Theorem number one says that if x and y are two real numbers, है ना, for any real numbers x and y, for any real numbers x and y, if we are having sin x equal to sin y, if we are having sin x equal to sin y, है ना, जैसे टेक्स्ट बुक में लिखा है उसी हिसाब से लिखेंगे।
इफ sin x इक्वल टू sin y विच इम्प्लाइज, है ना, अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आ गया कि sin x इक्वल टू sin y विच इम्प्लाइज, तो इसका जनरल सॉल्यूशन हमें मिलेगा x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n y वेयर n इज नथिंग बट दी z। डन। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन हमें ये मिलेगा। दिस इज द सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ वन इंटीजर n। So this is known as general solution। तो ये थियरम नंबर 1 है। थियरम नंबर 2 is for any real numbers, है ना, सेम, for any real numbers x and y, for any real number x and y, suppose we are given cos x equal to cos y, cos x equal to cos y, then it implies x will be 2n pi plus 2n pi plus y। Hush, where n belongs to z। डन। तो ये सॉल्यूशन हो गया cos x इक्वल टू cos y का, ये हो गया सॉल्यूशन sin x इक्वल टू sin y का। अब एक थर्ड थियरम है, थियरम नंबर 3। सो थियरम नंबर 3 सेज दैट यही फॉर एनी रियल नंबर, फॉर एनी रियल नंबर्स x and y, if we are having 10x equal to 10y, then it implies x will be n pi plus y where n belongs to z। डन। ये 3 फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। इसके बेस पर अभी हम क्वेश्चंस करेंगे टू सॉल्व दी ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशंस। डन। अभी आप बोलेंगे सर साइन आ गया, कॉस आ गया, टेन आ गया, व्हाट अबाउट कॉस एक्स? तो जब कभी भी कॉसेक एक्स होगा, कोई भी इक्वेशन कॉसेक एक्स में होगा तो उसको हम साइन में कन्वर्ट करेंगे। अगर कोई इक्वेशन सेक के फॉर्म में होगा, है ना, सेक एक्स, तो उसको हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे। अगर कोई इक्वेशन कॉट एक्स के फॉर्म में होगा तो इसको टेन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सारे ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशंस ये तीनों थियरम का यूज करके हम सॉल्व कर पाएंगे। सो फर्स्ट वी हैव टू नोट डाउन दिस थियरम्स। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन इज फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन इज sec x इक्वल टू sec pi plus x, sec x इक्वल टू sec pi plus x। सो हियर कैसे करेंगे देखो, तो हमें पता है कि sec को cos में कन्वर्ट करना होता है। सो sec इज 1 अपॉन cos x इक्वल टू sec pi plus x इज cos pi plus x, sec pi plus x nothing but the 1 upon cos pi plus x। डन। अभी दिस इज वन इक्वेशन, सो वी कैन टेक रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, है ना। तो ये हो गया हमारा cos x इक्वल टू दिस वन इज cos pi plus x। डन। तो अभी हमने एक थियरम लिखा, वो थियरम लिखने के बाद अभी मुझे कुछ डाउट आ रहा है कि cos x इक्वल टू cos y होगा, तो मैंने क्या लिखवाया आपको 2n पाई प्लस और माइनस y, है ना। ये शायद प्लस और माइनस नहीं लिखवाया था, तो 2n पाई प्लस और माइनस y आएगा वेयर n बिलोंग टू z। अभी नहीं लिखवाया होगा तो आप चेंज कर देना वहां पर, है ना, x इक्वल टू प्लस और माइनस y आएगा। अगर लिखवाया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हियर इंस्टेड ऑफ x, ना, x के प्लेस पर x ही है, बट इंस्टेड ऑफ y वी आर हैविंग पाई प्लस x। डन। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, ये फॉर्मूला का यूज करके। सो हियर वी कैन से दिस x विल बी 2n पाई प्लस और माइनस y, और y इज पाई प्लस x। डन। सो वी आर हैविंग टू ऑप्शंस, प्लस एंड माइनस, दोनों को सेपरेट कर देते हैं, एंड देयरफॉर वी आर हैविंग x इक्वल टू 2n पाई, पहले प्लस लेते हैं तो प्लस पाई प्लस x, और माइनस साइन कंसीडर करें तो क्या होगा, इट्स 2n पाई माइनस पाई प्लस x। डन। नाउ देयरफॉर दिस वन इज x इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई, और ये x को इस साइड ले ले, और ये क्या हो गया भगवान,
ये x को इस साइड ले ले तो ये हो गया x माइनस एक्स 0 और पाई कॉमन, दिस वन इज 2n प्लस 1। तो जो x की वैल्यू फाइंड करनी थी वो तो गायब हो गया, 0 हो गया। 0 इक्वल टू पाई विच इज 2n प्लस 1, है ना। ऐसा कुछ ये धरती पर नहीं हो सकता, ये बिल्कुल ही गलत है, ये नहीं हो सकता क्योंकि x ही गायब हो गया। तो विच इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। इसके लिए हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, है ना, इसके लिए सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ट्राई करते हैं क्या इसके लिए सॉल्यूशन मिलता है ना। दिस इज इक्वल टू x, सो हियर दिस x इक्वल टू 2n पाई माइनस x को इस साइड ले लो तो ये हो गया 2x, पाई को कॉमन लो, ये हो गया 2n माइनस 1। देयरफॉर वी आर हैविंग x इक्वल टू 2n माइनस 1 पाई बाई 2। ये 2 डिवीजन में चला गया, डन। x की वैल्यू आ गई। अगर आप बोलेंगे सर दिस इज आवर सॉल्यूशन, लेकिन अगर बच्चों अगर आप चेक करो, है ना, यहाँ पर n क्या है, n इज वन इंटीजर, n इज वन इंटीजर, डन। n एक इंटीजर है, सपोज इंटीजर में 1 ले लो, सपोज आई एम पुटिंग n इक्वल टू 1, तो ये x क्या आएगा, और x विल बी 2 इंटू 1, 2 माइनस 1, 1 पाई बाई 2, सो x विल बी पाई बाई 2। अगर ये x में पाई बाई 2 ये सॉल्यूशन में यहाँ पर अप्लाई करूँ, सपोज यहाँ पर अप्लाई करो x इक्वल टू पाई बाई 2, तो ये मुझे मिलेगा पाई प्लस पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। और हम सबको पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है, जो 11 साइंस में है उसको पता है, जो नहीं भी है उसको भी पता चल जाएगा कि ये जो cos 3 पाई बाई 2 दैट मीन्स पाई बाई 2 का कोई भी मल्टीपल ले लो, है ना, क्योंकि y एक्सिस पर आएगा और हमें पता है कि y एक्सिस पर cos हमारा 0 होता है। अगर 1/0 कर दे तो ये जो इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा, एंड दैट मीन्स दिस इज नॉट पॉसिबल वैल्यू, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो x की एक भी वैल्यू पॉसिबल नहीं आ रही है, दैट मीन्स दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। जो इक्वेशन हमें सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए दिया है उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है ना। ये हमारा आंसर। सेकंड क्वेश्चन, अरे सेकंड क्वेश्चन, ये सब लगा के घूमना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड दी सोल्व द इक्वेशन इज, देखो अच्छा क्वेश्चन है, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस √3 tan थीटा √3 tan थीटा इंटू मल्टीप्लीकेशन tan 2 थीटा इक्वल टू √3, है ना। ये इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाओ, तो सॉल्व करके दिखाते हैं। तो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, ये जो √3 है ना सामने भेजेंगे, तो क्या होगा हमारे पास, तो ये शायद ऐसे होगा, tan थीटा, है ना, ये दोनों को लिख रहा हूँ, प्लस tan 2 थीटा इक्वल टू √3 था यहाँ पर, ये √3 था, माइनस ये जो प्लस था वो सामने जाएगा तो माइनस, तो ये हो गया माइनस tan थीटा tan 2 थीटा। किसी को प्रॉब्लम नहीं है, अभी सब बच्चे अभी इंटेलिजेंट हो गए हैं। tan थीटा प्लस tan 2 थीटा, अभी आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर, है ना, दो टर्म में से √3 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आएगा तो कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस, तो ये बचा tan थीटा tan 2 थीटा। अभी बोलेंगे अभी सर आप क्या करोगे, अभी तो इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन सर ने प्रैक्टिस कर ली है पहले से, तो मुझे पता है कि ये करना है tan थीटा प्लस tan 2 थीटा डिवाइड बाई, है ना, ये ब्रैकेट को मैं फिर से डिवीजन में लाऊंगा, तो ये हो गया 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू √3, डन। तो अभी आप यहाँ पर कुछ नजर लगा के देखो, तो ये मुझे एक फॉर्मूला दिख रहा है ना, फॉर्मूला कुछ ऐसा था, कैसा था बच्चों, ऐसा था, देखो tan x प्लस वाई, tan x प्लस वाई होगा tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। तो यहाँ पर आप देखो तो x की प्लेस पर थीटा हुआ है ना, थीटा दिया हुआ है, और y की प्लेस पर 2 थीटा दिया हुआ है, तो अभी ये फॉर्मूला हो गया tan x प्लस वाई, तो थीटा प्लस 2 थीटा। क्लियर है बच्चों। तो दिस इज इक्वल टू √3 कौन से tan की वैल्यू होती है, वो होती है tan पाई बाई 3 की वैल्यू होती है, डन। तो देखो ये हो गया 10
10 थीटा प्लस 2 थीटा, tan 3 थीटा इक्वल टू 10 पाई बाई 3। बस यहाँ तक आना था। इसके बाद और हमें आगे कुछ ले जाएगा, कौन ले जाएगा? हमारा थियरम नंबर 3। थियरम नंबर 3 हमने ऐसे देखा था कि tan x इक्वल टू tan y है सपोज, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? इसका सॉल्यूशन बच्चों आएगा x इक्वल टू n पाई प्लस वाई वेर n बिलोंग्स टू z। तो x की जगह पर हमारे पास है 3 थीटा, तो ये हो गया 3 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 3 वेर n इज सम इंटीजर। डन। इसका सॉल्यूशन निकालना है, थीटा फाइंड करना है, तो थीटा क्या होगा? सो आवर आंसर थीटा विल बी 3 से डिवाइड करेंगे, तो इट्स n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 9 where n is some integer. So this one is the solution. This one is the solution of given trigonometric equations. Clear students? Clear है सबको? Now third question. Third question देखो 10 के बेस पर ही लेते हैं, है ना? तो here one question is solve the following equation. Equation is tan square theta plus 1 minus root 3 tan theta minus root 3 इक्वल टू 0, है ना? दिस इज वन ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। इसको सोल्व करेंगे टेक्स्ट बुक के अंदर, इससे तो एकदम आसान क्वेश्चन है ना? ये करेंगे तो टेक्स्ट बुक तो आ जाएगी। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस इसको मल्टीप्लाई करो यहाँ पर, ये हो गया tan थीटा माइनस रूट 3 tan थीटा माइनस रूट 3 इक्वल टू 0। डन। तो अभी क्या होगा देखो, पहला ग्रुप दूसरा ग्रुप, तो यहां से मैं पहले से मैं tan थीटा कॉमन ले रहा हूं, है ना? tan थीटा, टेकिंग tan थीटा कॉमन, सो रिमेनिंग टर्म्स विल बी tan थीटा प्लस 1, और यहां से रूट 3 कॉमन ले लो, तो ये हो गया tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। डन। अभी पूरे ब्रैकेट में से मैं tan थीटा प्लस 1 कॉमन ले रहा हूं, है ना? tan थीटा प्लस 1 कॉमन ले रहा हूं, तो ये tan थीटा प्लस 1 कॉमन ले लिया है, तो बाकी बचा tan थीटा माइनस रूट 3 इक्वल टू 0। दोनों टर्म का मल्टीप्लीकेशन 0 आ गया, तो हम ऐसे लिखते हैं कि tan थीटा प्लस 1 इज 0 और tan थीटा माइनस रूट 3 इज 0। तो यहाँ से हमें मिलेगा बच्चों कि tan थीटा इक्वल टू -1, tan थीटा इज इक्वल टू -1, और यहाँ से हमें मिलेगा tan थीटा इक्वल टू प्लस रूट 3। तो ये tan थीटा इज इक्वल टू -1 आ गया, तो tan थीटा इक्वल टू -1 को लिखेंगे tan पाई बाई 4, डन। और ये हो गया tan थीटा इक्वल टू tan पाई बाई 3, tan थीटा इक्वल टू tan पाई बाई 3, डन। तो अभी ये माइनस पाई बाई 4 को, है ना, और नेगेटिव है tan नेगेटिव कहाँ पर होगा? tan नेगेटिव होगा ऑल एस टी सी, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, डन। तो tan नेगेटिव को हम सेकंड क्वाड्रेंट में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे? सो दिस वन इज tan थीटा इक्वल टू tan पाई माइनस पाई बाई 4, और ये तो डायरेक्ट पाई बाई 3 है, सो यहाँ पर हमारे पास आ गया tan थीटा इक्वल टू tan 3 पाई बाई 4, है ना? tan थीटा इक्वल टू tan 3 पाई बाई 4, और यहाँ हमारे पास है tan थीटा इक्वल टू tan पाई बाई 3, और हमारा जो थियरम था वो क्या था? वो ऐसे था, इफ tan x इक्वल टू tan y, देन x इक्वल टू n पाई प्लस y वेर n बिलोंग्स टू z, है ना? n, तो यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन है, तो एक बार हम इंटीजर n लेंगे और दूसरी बार हम इंटीजर m लेंगे, और दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखेंगे। सो हियर थीटा इज n पाई प्लस 3 पाई बाई 4 where n belongs to z, and theta is m pi plus pi by 3 where m belongs to z, done।
So this is the solution. This is the solution of, है ना, ये दोनों इक्वेशन के बीच में आएगा और. So this is the solution of this given trigonometric equation. Clear, students?